We now come to understand how matrices are multiplied. The first thing that we will learn today is scalar multiplication. Scalar is any number, any given number in the number system. Okay, so when we multiply a matrix with any scalar number, then we apply this following rule. Say, suppose there is any number k which is multiplied to a matrix A, then what are we doing? We multiply this number k with every element of the matrix. Okay, and what we get is k a I j because we are multiplying with every element. For example, if we have a number 5 and we are multiplying that with the matrix A, then we are multiplying actually 5 and matrix A is 1, 2, 3 and 4. So what we get is 5 into 1 is 5, 5 into 2 is 10, then we get 15 and 20. So what we did is we multiplied 5 with every element in the matrix. स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम किसे कहते हैं? जब कोई भी एक अंक या संख्या को हम किसी मैट्रिक्स के साथ गुणा कर देते हैं. जब हम गुणा करेंगे तो गुणाफल में हम कैसे प्राप्त करते हैं आंसर को? इस स्केलर नंबर को हर एक अवयव के साथ हम गुणा करते जाएंगे और हमें उसके बाद हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा. 5a जो है हमारा प्रोडक्ट, वो हमें मिलेगा 5, 10, 15, 20 के मैट्रिक्स के रूप में. इसी तरह से मान लीजिए मैट्रिक्स A, if A is equal to 1, 2, 3 and 4 and we have to multiply it with 3, so we want to get 3A. तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? गुणफल क्या निकलेगा? 3, so we will get 3, 6, 9 and 12 क्योंकि हमने हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है. ठीक उसी तरह से मान लीजिए हमारा एक स्केलर है, एक संख्या है जो कि -6 है और उसे हम a के साथ गुणाफल करेंगे. सो इट इज़ एक्चुअली -6 into 1, 2, 3 and 4. So what do we get? We get -6, -12, -18 and -24. This is how we will get. In the similar manner, say suppose we have a matrix B which is 8, 12, 4 and 16. Fine. Now we want to find half of B. So we are multiplying the matrix B with half. हमने B matrix को 1/2 से multiply किया है. तो क्या हो जाएगा? It will become 8 into half, 12 into half, 4 into half and 16 into half. सबको हम half से multiply करते हैं. क्या निकलेगा हमारे लिए? 4, 6, 2 and 8. This will be our result. This was easy, right? Now we move to multiplication of matrices. अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और उन मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, right? So we will now see how to find product of two matrices. दो मैट्रिक्स है, मान लीजिए A तथा B, तो हम इनका प्रोडक्ट्स लाइक A is A B C D and B is 1 2 3 4. तो हम कैसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? पहले तो हम ये जान लें कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर दो मैट्रिक्स है जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो इफ देयर आर टू मैट्रिसेस A and B, they can be multiplied only if the number of columns of the first, इसमें दो कॉलम है, are equal to the number of rows of the second. Fine. So if any matrix A and B will be multiplied when the if it is m into n, right?
So number of columns of the first should be equal to number of rows of the second. It can be n into p, but this n should be equal. यानी अगर a is 3 by 2, then b should be 2 by 3, or it should be 2 by 4, anything. But there should be 2 rows, क्योंकि यहाँ पे a में 2 कॉलम है, तो b में 2 रो निश्चित होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो. Okay, so then only in this condition we can say that the two matrices are conformable for multiplication. हम कह सकते हैं कि दोनों matrices में multiplication या गुणा हो सकता है. कब गुणा होगा? जब पहले मैट्रिक्स का जितना कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स का उतना ही रोज होंगे, उतनी ही संख्या में रोज होंगे. जब a इंटू बी करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी, जिसमें ए को हम प्री मल्टीप्लायर कहेंगे और बी को हम पोस्ट मल्टीप्लायर कहेंगे. क्या कहेंगे? वंस अगेन आई रिपीट, ए इज नोन एज अ प्री मल्टीप्लायर. ओके, ए इज प्री मल्टीप्लायर and B is known as post multiplier. Okay, so let us take two matrices again and see how it is done. So A is equal to, say suppose 1, 2, 3. How many columns are there? 3. So B should have how many rows? It should have at least 3 rows. And there are 2 columns, but this should be, if this is 2 into 3, sorry 1 into 3, then this should be 3 into anything. So 3 into यहाँ पे 2 है, यानी ये और ये मैच होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. Now let us see how do we multiply in this case. So first हम इसका conformability तय कर लेंगे. Are they conformable? Yes, both of the matrices A and B are conformable for multiplication, यानी दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया जा सकता है. फाइन. अब हम क्या करेंगे? इसमें ए बी निकालने के लिए हम ए के जितने सारे एलिमेंट्स होंगे इनको एक एक करके इसके रोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. लेट अस फाइंड आउट हाउ. द फर्स्ट एलिमेंट इज 1, तो हम क्या करेंगे? 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5. हमने यहाँ पे क्या किया है? हर एक एलिमेंट ए का बी के हर एक एलिमेंट से रो वाइज मल्टीप्लाई किया है, यानी फर्स्ट कॉलम विल बी मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड, मतलब ये इस तरह से हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. अब सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? फिर से हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट. अगेन हम इन तीनों को, इस पूरे रो के संख्याओं को फिर इस कॉलम की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1. Okay, so what do we get here? 1 into 1 is 3 plus 8 plus 15, और यहाँ पे मिलेगा 1 plus 4 plus 3. So what do we get here? We get 26, and here we get 8. So what is this order? 1 into 2. जब हम दो मैट्रिक्स A और B को मल्टीप्लाई करते हैं जिनका पहले का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू दूसरे का नंबर ऑफ रोज, तो जो प्रोडक्ट होगा ए बी वो कौन से फॉर्म में होगा? किस ऑर्डर का होगा? 1 इंटू 2, यानी इसका रो और इसका कॉलम लिया जाएगा. यहाँ पे भी हमें वही मिलता है. फाइन. सो दिस इज हाउ वी विल डू मल्टीप्लिकेशन. जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे और भी एक्सरसाइजेस, इट विल बिकम क्लियरर.